Good afternoon, everybody. My name is Wing Commander Krishnamurthy, and I'm going to tell you about the SSB procedures, especially for AFCAT candidates. That is, जो candidates Air Force Common Admission Test दे चुके हैं and they have cleared the written examination. Now, all these candidates को मैं ये बताना चाहता हूँ कि your next aim is to now go for the Services Air Force Selection Boards. So Air Force Selection Board, there are 5 Air Force Selection Boards which are there. The number 1 Air Force Selection Board is in Dehradun, which is the biggest Air Force Selection Board which is there. The number 2 AFSB is in Mysore. The number 3 Air Force Selection Board is in Gandhinagar. Number 4 Air Force Selection Board is in Varanasi. And the number 5 Air Force Selection Board is in Guwahati. Bacha, I'm congratulating all of you for successfully completing the written examination for AFCAT. And now you're all going to prepare for the Air Force Selection Boards. So let me tell you what you're going to encounter when you go for the AFSB. But before that, let me introduce myself to you. My name is Wing Commander Krishnamurthy, and I have got 25 years of experience in the Indian Air Force. Now, what all things I have done in Indian Air Force? I have been a flying pilot. I have been a pilot of transport aircraft. Also, I have done extensive, work at the air headquarters, especially dealing with the AFCAT cell. I was in the Directorate of Personnel Officers. And bachon, before retiring, I was in number 1 Air Force Selection Board, Dehradun, as the senior interviewing officer. I was looking after candidates like you who come for the SSBs. So, bachon, I am the interviewing officer, and let me tell you what all things will happen when you go for the AFSB. Now, when you go for the AFSB, what happens is when you go and report to any of the Air Force Selection Board, there is something called as Phase 1 which is there. All the AFSBs have something called as Phase 1. This Phase 1 is actually called as screening. They have something called as screening here. Okay, bachon. So this selection board, आप जाओगे AFSBs. This is basically selection system of Air Force Selection Boards, AFSBs. In the screening, what happens? There are 2 primary tests which are there. The first one is called as OIR, or which is called as Officers Intelligence Rating Test, OIR. This OIR is something called as verbal and non-verbal होता है, and it is easily available in market. इसका books available हैं, and it is basically a qualifying test. If OIR is a qualifying test. इसके बाद screening में what all things you are going to encounter is called as PPDT, Picture Perception and Description Test, or sometimes it is called as Discussion Test also. I will explain to you after some time what are the elements which are there in PPDT, because it's very important. One more thing I want to tell all the candidates is the ratio of people who are coming from Phase 1 to Phase 2. What will happen if you don't clear Phase 1? If you don't clear Phase 1, you are screened out. Screen out. This is very important for everybody. Let me assure you that if you get screened out, then you don't come and get admitted in Phase 2, which is actually the actual SSB testing which happens in Phase 2 for a 5-day testing procedure. So screening is very important, and you have to come to a proper coaching institute to practice this screening, because if you don't practice screening, what is going to happen? You will get screened out. And आजकल क्या हो रहा है? Most of the thing which I am having the information from AFSB is that the ratio of people who are getting screened out is too high. That is, about 1:5 in the candidates are getting screened in, and the rest of the people get screened out. That is, people 5 लोग जब जाते हैं AFSB में,
So only one person gets screened in and comes to phase 2 for AFCAT entries. I'm specifically targeting the AFCAT entries. So you have to prepare for the phase 1, that is called as the screening. And screening में the most important test is the PPDT, picture perception and description test. Okay बच्चों, now let us say that you get screening, that is you pass phase 1. जब you pass phase 1, you come to phase 2, which is called as screen in. When you get screened in and come to phase 2, what happens is पहले होता है document checking. I will also cover what are the important documents which you have to take when you go for the Air Force selection boards. जो मैंने 5 Air Force selection boards बताए हैं for AFCAT entries. And be very sure that you have to take these documents. If you don't take these documents, you get document out. That means you are not admitted from phase 1 to phase 2. Because phase 2 में एक और बार admission होता है in the SSBs. अब phase 2 में क्या होता है? There is something called as 5-day testing procedure. This is the testing schedule for phase 2. तो इसमें क्या होता है, डे 1 में मैंने आपको बताया था फेज 1 टेस्टिंग प्रोसीजर होता है. इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट चेक. तो ऑल द कैंडिडेट्स जो आप जा रहे हो फॉर द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स, प्लीज नोट डाउन व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू टेक. First and foremost, you have to take your origin, all the things you have to take originals. Originals, no Xerox copy is required. Original. You have to take your admit card. The admit card on which you have cleared the written exam. Admit card लेके जाना. Number 2, Aadhaar card. You have to take your Aadhaar card. That's very important. Thereafter, you have to take one more photo ID. You can take your PAN card or you can take your college ID card. But photo ID लेके जाना है. This is checked. Then you have to take your class 10 matriculation certificate. That is original certificate जो school issue करता है, not the DigiLocker one. DigiLocker one SSBs accept नहीं करते, AFSBs. इसके बाद you have to take your class 12 original certificate. Then you have to take your mark sheets of your graduation. That is all the semesters. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suppose 8 semester है for BTech and there are 6 semester है for BSc या BA और BCom. You have to take your mark sheets. तो आप लोग को क्वेरी होगा कि मार्क शीट्स ओरिजिनल मेरे पास नहीं है. ऑल दिस थिंग्स क्वेरी होगा. और ओरिजिनल नहीं है तो आप प्रिंट आउट लेके उसको अटेस्ट करना है फ्रॉम योर रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल. सारा मार्क शीट्स को अटेस्ट करना है. Because without attestation, even the printout is not accepted by the Air Force selection. वो बोल देंगे इसको अटेस्ट करके लाओ और आपका एक अटेम्प्ट चला जाएगा. Thereafter, you have to take your provisional degree certificate अगर आपके पास है, और you have to take your original degree certificate. डिग्री सर्टिफिकेट लेना है, ओरिजिनल और प्रोविजनल. अगर पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कॉलेज से एक लेना पड़ेगा बिफोर यू गो फॉर द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स. ओके बच्चों, इसके अलावा जिसको बोलते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स कुछ होते हैं. व्हाट आर द ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू टेक? यू हैव टू टेक योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है, जो आपने स्कूल में किया है या कॉलेज में किया है. गेम्स सर्टिफिकेट्स एटलीस्ट 2 और 3 यू कैन टेक. अगर आपने कुछ एनसीसी किया है तो एनसीसी सर्टिफिकेट्स लेके जा सकते हैं. तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सर्टिफिकेट, गेम्स सर्टिफिकेट एंड एनसीसी सर्टिफिकेट. ओके बच्चों, कोई जेरोक्स नहीं लेके जाना है. अगर सर्टिफिकेट्स आपके पास ऑप्शनल सर्टिफिकेट्स नहीं है देन यू डोंट हैव टू टेक, नो प्रॉब्लम. बट अगर है तो यू हैव टू टेक इट बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड देयर. ओके, तो इसको आप एक फोल्डर बना के लेके जाना है. इसके अलावा यू हैव टू टेक एटलीस्ट 5 फोटोग्राफ्स बिकॉज वहां पे फोटोग्राफ लेने के लिए प्रॉब्लम ना हो. 5 फोटोग्राफ लेके जाना है. Then you have to take write and take the contact details of 2 known personnel because अगर recommend हो जाते हैं तो ये पूछेंगे कि contact details of 2 known personnel with their address and telephone number जो आपको पता है.
प्रेफरेबली अ गेजेटेड ऑफिसर। अगर गेजेटेड ऑफिसर नहीं है तभी भी नो प्रॉब्लम, बट प्रेफरेबली दे आस्क फॉर अ गेजेटेड ऑफिसर। तो ये आप रेडी बना के लेके जाना है, एक फोल्डर में डाल के ये इंफॉर्मेशन व्हेन यू गो फॉर द एसएसबीज। नाउ एसएसबी में समथिंग कॉल्ड एज ए पीआईक्यू फॉर्म। फेज 2 में जब आप एडमिट हो जाओगे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर ये आपसे फिल कराते हैं। to be as neat as possible and fill all the columns of the PIQs. दो कॉपीज में फिल करते हैं। One of the copy goes to an interviewing officer, another copy goes to the psychologist. ये दो कॉपीज आपको बनना है। वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स यू आर टेकिंग, फॉर एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड हो गया या 12th स्टैंडर्ड हो गया, उसमें जो परसेंटेजेस लिखा हुआ है, द सेम थिंग यू हैव टू पुट इन द पीआईक्यू फॉर्म। याद रहे बच्चों, डोंट मेक मिस्टेक्स इन पीआईक्यू फॉर्म। इसमें अगर आप मिस्टेक्स कर देंगे देन योर इंटरव्यू फॉइल हो जाएगा। पीआईक्यू फॉर्म में मिस्टेक्स अलाउड नहीं है। ओके, देयर आफ्टर आपका डे 2 में क्या शेड्यूल होगा? डे 2 में अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो पहले होता था सीपीएसएस डे 2 में, आजकल डे 2 में सीपीएसएस नहीं होता, सीपीएसएस कॉन्फ्रेंस के बाद होता है। डे 2 में आपका साइट टेस्टिंग होगा। कभी कभी एसएसबी में क्या होता है, डे 1 में ही साइट टेस्टिंग कंडक्ट करते हैं इन द इवनिंग टाइम, कभी कभी डे 2 में कंडक्ट करते हैं। यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। ओके, देयर आफ्टर डे 3 एंड डे 4, डे 3 डे 4 में आपका जीटीओ होगा, ग्रुप टेस्टिंग। ग्रुप टेस्टिंग के लिए आपको क्या क्या चीजें लेके जाना है जब आप एसएसबी में जा रहे हैं? व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एसएसबी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में, यू हैव टू कैरी अ 2 pairs of formal dress. So what is formal dress? Formal dress होता है shirt, a good full sleeve shirt, light color preferably, a proper trousers, you have to carry a tie, belt, black leather shoes and black socks. ये हो गया formal attire बोलते हैं या formal dress बोलते हैं for the interview. और GTO के लिए आपको क्या ड्रेस लेके जाना पड़ेगा? आपको व्हाइट और प्रेफरेबली अ लाइट कलर टी शर्ट, हाफ पैंट लेके जाना, प्रेफरेबली व्हाइट या एनी अदर कलर। बर्मुडा इज नॉट अलाउड। हाफ पैंट लेके जाना है। देन स्पोर्ट्स शूज, प्रेफरेबली व्हाइट एंड व्हाइट सॉक्स। ये हो गया स्पोर्ट्स अटायर। अगर आपके पास व्हाइट हाफ पैंट नहीं है, यू कैन टेक व्हाइट फुल पैंट, दैट्स ऑल। नो बेल्ट, नथिंग रिक्वायर्ड फॉर द जीटीओ। ओके, तो जीटीओ जब 2 दिन हो रहा होगा, 2 दिन जीटीओ होता है, इसलिए आप 2 पैर लेकर जाएंगे तो अगर एक पैर अगर खराब हो गया तो दूसरा दिन दूसरा पैर पहन सकते हैं। इट इज प्रेफरेबली नॉट पॉसिबल दैट गंदा के पैर, अगर फर्स्ट डे में पैर टी शर्ट गंदा हो गया तो सेम थिंग को रिपीट करना ज्यादातर अलाउड नहीं होता। ओके, एंड वहां पे वॉशिंग फैसिलिटी समटाइम ऐसे एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में नहीं होता है। So in that case, it is better to carry 2 pairs of GTO dress. इसके बाद होता है personal interview. This is the third test which happens, or we call it as IO. Now, interview, what are things you are supposed to bear in mind is, please remember what all things you have filled in the PIQ form. Especially percentages को याद रखना, don't forget the percentages of your 10th standard, 12th standard, and of your achievements in any entrance examinations after class 12. For example, JEE mains हो गया या CUET हो गया, and what all percentages आपने किया है, ये भूलना नहीं, because वो पूछते हैं वहां पे। इसके अलावा आपने कोई गेम्स खेला है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज खेला है, बोथ स्कूल एंड कॉलेज। बच्चों, गेम्स इज बहुत इंपॉर्टेंट इन एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड AFSB में। तो अगर आपको गेम्स का नॉलेज नहीं है, स्पेशली जो गेम्स आपने खेला है, इसमें आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। किसमें आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेगा? इंटरव्यू में। तो मेरा एडवाइस क्या है कि जो भी गेम्स आपने खेला है, अगर आपने लिमिटेड भी खेला है या कैजुअल भी खेला है, नो प्रॉब्लम, बट इसका नॉलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। ओके, तो इसके अलावा आई वुड सजेस्ट एवरीबडी, सभी लोग,
प्लीज रीड न्यूज़पेपर्स. कौन सा न्यूज़पेपर? आइडियली यू कैन रीड एनीथिंग विच यू वांट. फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, और इवन इंडियन एक्सप्रेस हो गया. जो हाथ में मिलता है, प्लीज रीड प्रॉपर न्यूज़पेपर. डोंट रीड द ऐप वाला जो मोबाइल्स में, बिकॉज न्यूज एनालिसिस एटलीस्ट 5 इंटरनेशनल न्यूज एंड 5 नेशनल न्यूज, ये पूछा जाता है इन द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, स्पेशली इन द इंटरव्यू. न्यूज एनालिसिस जब तक आपका ठीक नहीं है, आपका परफॉर्मेंस इन द एसएसबीस उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप चाहते हो. बिकॉज परफॉर्मेंस इन एवरी सिंगल टेस्टिंग, विच इज साइट टेस्टिंग हो या जीटीओ सेटिंग हो या इंटरव्यू टेस्टिंग हो, ऑल द 3 टेस्टिंग में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए. बिकॉज मैंने जैसे बताया था, कंपटीशन बहुत इंटेंस है फॉर द एफकैट एंट्री. इसके अलावा यू शुड नो अबाउट एयरफोर्स. इंडियन एयरफोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड नो अबाउट एयरफोर्स? You should know the structure of Air Force, structure of IAF. अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, then you should know the principle of flight. ये पूछा जाता है कभी कभी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट. और क्या क्या चीजें आपसे पूछा जाता है स्पेशली फॉर द एयरफोर्स कैंडिडेट्स. आप अगर फर्स्ट फ्लाइंग ब्रांच ऑप्ट करे हो तो आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ चॉइस तो होगा. सेकंड में आपने टेक्निकल किया है, थर्ड में एडमिनिस्ट्रेशन किया है, फोर्थ में लॉजिस्टिक्स, या फिफ्थ में अकाउंटेंसी, या बाकी जो भी ब्रांचेस करें, दोस ब्रांचेस के ऊपर यू शुड नो. तो बेसिकली यू शुड नो द ब्रांचेस इन एयरफोर्स. ब्रांच ऑफ आईएएफ, ज्यादातर ब्रांच ऑफ आईएएफ के बारे में पूछते हैं कि हाउ आर यू फिटिंग इनटू डिफरेंट ब्रांचेस. आपका जो ग्रेजुएशन में आपने जो भी सब्जेक्ट्स लिया है, ये किस ब्रांच ऑफ आईएएफ में सुटेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर वेपन सिस्टम ब्रांच है और आपने कुछ सब्जेक्ट्स लिया है, तो यू हैव टू जस्टिफाई कि आपका जो क्वालिफिकेशन है या जो भी सब्जेक्ट आपने जो किया है वो किस ब्रांचेस में बेस्ट सुटेबल होगा. चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो या लॉजिस्टिक्स में हो या वेपन सिस्टम में हो या फ्लाइंग ब्रांच में हो, कैसे होगा. एंड आपका कंट्रीब्यूशन आप बेस्ट कैसे, आपका नॉलेज एंड आपका जो एबिलिटी है, बेस्ट कैसे आप एयरफोर्स को सर्व कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा. तो ये सब चीजें जो भी हैं, you have to prepare and go, because without preparation what is going to happen, you will not be able to perform in the Air Force Selection Board, AFSBs. And इसके अलावा what other things you should know? You should know about the service chief's name. Service chiefs of IAF, Army, नेवी, सीडीएस, इनका नाम विथ रैंक, देन नेम एंड डेकोरेशंस. ये सब चीजें आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? ये सब चीजें आपको आईएएफ का पोर्टल में मिलेगा. ओके, सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा इंडियन एयरफोर्स का वेब पोर्टल. ये एवरीथिंग अवेलेबल है. देयर इज नथिंग विच इज नॉट अवेलेबल. जो मीडिया में अवेलेबल है या वेब पोर्टल में अवेलेबल है, इतना आप अगर पता करेंगे एंड प्रिपेयर एंड गो, सफिशिएंट है. बट इफ यू से दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, then it shows that you are not adequately prepared for the AFSBs. And adequate preparation is what is the most important part in preparation for the AFSBs. चाहे वो phase 1 में हो या phase 2 में हो, every part of phase 2. I'm mostly concentrating on the interview part, personal interview. So that is one of the most important area where candidates who are coming for with the background of graduate entry candidates generally do not do well. And it's not that आपका ability का problem है, no, it is the preparation which is the most important part. Because जो अगर ability ठीक हो या ना हो, let the examiner decide. आपकी तरफ से आप prepare करके जाइए, no problem. And now you have got some time also to prepare. अभी आपके पास some time है, इतना जल्दी आपको SSBs का call letter नहीं आएगा. So preparation is most important, and that is what I keep on emphasizing to all my students कि जितना आप prepare करके जाएंगे उतना आपका
परफॉर्मेंस इन द SSB वेरी नाइसली होगा। एंड कौन एग्जामिनर नहीं चाहता है कि आपको क्लियर करें? एवरीबडी विल लाइक टू क्लियर यू प्रोवाइडेड यू परफॉर्म। एंड परफॉर्मेंस के लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रीड न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर के अलावा you should know about some defense knowledge. डिफेंस नॉलेज में आपको जनरली एयरफोर्स का, फ्लाइंग का, एयरक्राफ्ट के बारे में पूछेंगे कि एयरफोर्स में फाइटर्स में कौन सा एयरक्राफ्ट अवेलेबल है, ट्रांसफोर्स में कौन सा है, हेलीकॉप्टर्स में कौन सा है। आजकल जनरली क्या हो रहा है इंटरव्यू में, ड्रोन्स के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज आपको पता होगा द रिसेंट वॉर विच हैपेंड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ड्रोन्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। इट्स कॉल्ड एज अ वर्चुअल वॉर आजकल ऑलमोस्ट होने लग गया, वेयर देयर इज नो मैन पावर का रिक्वायरमेंट नहीं है या कॉस्टली एयरक्राफ्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्रोन्स आर डूइंग द जॉब विच अर्लियर पायलट एयरक्राफ्ट विद पायलट्स वर डूइंग, और पायलटलेस एयरक्राफ्ट जैसे बोलते हैं UCAVs। सम ऑफ द ड्रोन्स विच आर प्रोमिनेंट ड्रोन्स विच आर बीन यूज्ड का नाम पता होना चाहिए। ऑल दिस आर अवेलेबल इन द वेबसाइट, आपको जस्ट वेबसाइट में जाके प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड दैट इज इनफ। इसके अलावा मिसाइल्स आर देयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एयरफोर्स। सम मिसाइल्स विच एयरफोर्स इज ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, और नहीं तो मिसाइल्स विच हैव बीन इंपोर्टेड, दिस मिसाइल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एयरफोर्स में कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर वेरी एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, बेसिकली बेस्ड ऑन रेडार्स। द कम्युनिकेशन सिस्टम्स बेस्ड ऑन रेडार्स एयरफोर्स ने बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऑल दिस अवेलेबल इन इंडियन एयरफोर्स का वेबसाइट में, अपडेट होते रहता है ऑल द एडवांसेस विच एयरफोर्स हैज मेड। यू जस्ट हैव टू गो देयर, सिट डाउन, प्रिपेयर, मेक नोट्स एंड यू विल बी एबल टू डू वेल। ओके बच्चों, now let us come to the last part of the SSB एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस किसके लिए होता है? ज्यादातर जब आप साइक टेस्टिंग दिए हैं, GTO टेस्टिंग दिए हैं या इंटरव्यू दिए हैं, ये जो एग्जामिनर जो आपको एग्जामिन किया है, ये आपस में इनको पता नहीं है कि कौन कौन आपको टेस्टिंग किया है। दैट इज साइक को पता नहीं कि कौन आपका आयोग था, या GTO को पता नहीं आपका आयोग कौन था। ये पता चलता है ओनली ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करते हैं कि आर यू हैविंग द बेसिक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, OLQs आपके पास है और आपने सफिशिएंट प्रिपरेशन किया है, यू आर सिंसियर, यू आर डेडिकेटेड एंड यू हैव गॉट दैट स्टैमिना, जो है मेंटल स्टैमिना, फिजिकल स्टैमिना टू गो थ्रू द ट्रेनिंग जो होता है एयरफोर्स एकेडमी में फॉर विच एवर ब्रांच। आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये सब चीजें जनरली एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में देखा जाता है। तो इट इज कॉल्ड एज अ 5-day टेस्टिंग प्रोसीजर। डे 1, 2, 3, 4 जनरली क्या होता है, डे 1 स्टार्ट्स ऑन इन द वीक में। डे 1 स्टार्ट होता है मंडे को, डे 1 स्टार्ट होता है मंडे को, एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को कॉन्फ्रेंस होता है ज्यादातर, एंड कॉन्फ्रेंस हैपेंस ऑन सैटरडे। तो मंडे टू सैटरडे AFSBs में होता है। ऑल्सो बच्चों, आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन थिंग आपको, इट इज बेटर दैट आपका जो फर्स्ट अवेलेबल चॉइस है SSB में, ये आप चूज करें। अगर आपके पास चूज का ऑप्शन आए तो समटाइम्स द ऑप्शन आता है कि यू हैव बीन अलॉटेड नंबर 1 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड एंड प्लीज चूज विच डेट यू वांट टू गो फॉर। समटाइम्स ऑप्शन नहीं आता है। बाई चांस अगर आपको ऑप्शन आ गया, देन आई वुड सजेस्ट इट, आप जो फर्स्ट अवेलेबल डेट है उसको चूज कर लेंगे। उसमें क्या होगा, आपको फेस 1 में काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके बच्चों, मोर इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑन द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का प्रोसीजर, एंड विश यू ऑल वेरी गुड एंड हैप्पी प्रिपरेशन फॉर योर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच।